علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھے سے؟ کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ یسٹرڈے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اراؤنڈ دا اولڈ ٹاؤنز، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے کل ہرپین سویلائزیشن پڑھا، ٹھیک ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن پڑھ رہے ہیں نا ہم، تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آرکیولوجسٹس ہیں انہوں نے وہاں پر بہت ساری چیزیں فاؤنڈ کی، کھوج کی وہاں پر، جیسے پیسز آف پورٹریٹ، ٹوائز، سیلز، جویلری، ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت ساری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آرکیولوجسٹس نے وہاں پر کھوج نکالی، ٹھیک ہے، اور انہی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہت پرانے ٹائپ کے لوگ، جو بہت پہلے لوگ، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ کچھ امپورٹنٹ ہسٹوریکل سورسز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی جو کچھ اولڈ چیزیں تھیں یہ کچھ ہسٹوریکل سورسز ہیں جن کے بیسس پہ یہ جو آرکیولوجسٹس ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، وہ آج ہمیں یہ پروف دیتے ہیں کہ آج سے 1000 ایئرس پہلے 2000 ایئرس پہلے لوگ کیسے تھے، وہ کیا کام کرتے تھے، وہ کھاتے کیا تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم آگے پڑھیں گے اسی کے بارے میں، انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں تھوڑا سا۔ دیکھیے بیٹا، archaeologists have found amazing facts about Indus Valley civilization۔ مطلب یہ جو archaeologists ہیں یہ کیا ہیں، انہوں نے بہت کچھ امیزنگ فیکٹس، انہوں نے بہت کچھ انٹرسٹنگ چیزیں کھوج نکالی انڈس ویلی سویلائزیشن میں، ٹھیک ہے۔ کیا کیا چیزیں انہوں نے وہاں پر دیکھی وہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ روڈس اینڈ ہاؤسز ویر ویل پلانڈ۔ دیکھیے بیٹا، جب انہوں نے انڈس ویلی سویلائزیشن، آرکیولوجسٹس نے جب انڈس ویلی سویلائزیشن سٹارٹ ہوا تب وہاں پہ کیا ہوا، انہوں نے وہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھی، ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں پہ کچھ امیزنگ فیکٹرز دیکھے، انہوں نے جب کھوج نکالا، انہوں نے جب زمین کو ڈگ آؤٹ کیا، کھودا، تو وہاں پر انہوں نے جب روڈز دیکھے، وہ کچھ ایریاز ریجنز دیکھے نا، تو وہاں پر انہوں نے کچھ ایسے روڈز دیکھے، سڑکیں ایسی دیکھی اور ہاؤسز ایسے، وہ ویل پلانڈ تھے، اچھے خاصے بنے ہوئے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ مطلب آج کل جو روڈز ہیں ایسے نہیں، بٹ آج سے 1000 ایئرس پہلے انہوں نے دیکھا کہ آج سے 1000 ایئرس پہلے روڈز کیسے تھے، جو وہ لوگ تھے وہاں پر روڈز کیسے تھے، ان جگہوں پہ روڈز کیسے تھے، ہاؤسز کیسے تھے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کھوج نکالا کہ وہاں پر جو ہاؤسز تھے، روڈز تھے، وہ ویل پلانڈ تھے، ٹھیک ہے، اچھے طرح سے بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاؤسز وائر میڈ آف بیکڈ برکس، ٹھیک ہے، میڈ آف مڈ کلے۔ یہ جو ہاؤسز تھے نا، انہوں نے کچھ، کیونکہ جب انہوں نے کھوج نکالا، جب انہوں نے زمین کو کھوجا تو وہاں پر کیا، انہوں نے کچھ ایسے مکان دیکھے، وہ کچھ اچھے بنے ہوئے تھے، برکس کے بنے ہوئے تھے، بیکڈ برکس، آپ کو پتہ ہے میڈ آف مڈ، یہ جو مٹی ہوتی ہے نا، مٹی کے مکان، آج بھی اگر آپ کہیں پر دیکھو گے، حال فی الحال کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی ایسا مکان ملے گا جو بہت پرانا ہوتا ہے، جو مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ آج بھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ مٹی کے مکان بناتے ہیں، مطلب سیمنٹ کی جگہ وہ مڈ یوز کرتے ہیں، جب مکان بناتے ہیں نا تو وہاں پر سیمنٹ لگتا ہے نا، یہ جو برکس ہوتے ہیں ان کے بیچ میں سیمنٹ لگتا ہے نا، لیکن آج کل کبھی کبھار، زیادہ تو نہیں لیکن 100 میں 5% لوگ جو ایسے ہیں وہ آج بھی برک، یہ جو مڈ یوز کرتے ہیں انسٹیڈ آف سیمنٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے آرکیولوجسٹس نے فاؤنڈ کیا کہ پہلے زمانے میں جو لوگ تھے نا، ان کا جو مکان تھا نا وہ پورا مٹی کا بنا ہوا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پورا مٹی کا بنا ہوا ہوتا تھا، لیکن ویل پلانڈ تھا، جو روڈز تھے وہ بھی مٹی کے ہوتے تھے لیکن اچھے سے پلان کیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ many things found there like houses, buildings etc۔ آرکیولوجسٹس نے ان ایریاز کو جب چھانا زمین کے اندر جو وہ بریڈ تھے، تو وہاں پر انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے، جن میں ہاؤسز تھے، بلڈنگز تھے، روڈز تھے، اور بھی بہت سارے کچھ ایسے ہاؤسز کے اندر کیا کیا ہوتا تھا، جیسے ہاؤسز میں رومز الگ الگ ہوتے تھے، یہ جو یارڈ ہوتا تھا، صحن ہوتا تھا، آنگن ہوتا تھا، وہاں پر کیا کیا ہوتا تھا، ویل، کنویں ہوتے تھے وہاں پر بنے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے وہاں پر دیکھی، انہی بیسس پہ انہوں نے یہ آج ہمیں بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ کیسے ہوا کرتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کا پہناوا کیسے تھا، وہ کھانے میں کیا کھاتے تھے، تو یہی چیزیں انہوں نے وہاں پر دیکھی،
ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारे स्ट्रीम्स ऐसे देखे, ऐसे वेल देखे, इन्होंने कहा कि वो कुछ ऐसे वहाँ पर, ठीक है ना। मतलब इन्होंने यही कहा कि वो पुराने लोग किस तरह से अपनी लाइफ गुजारते थे, ठीक है। सो a dockyard found at Lothal. A dockyard found at Lothal near present-day Gujarat suggests that ships might have carried goods. ठीक है, देखिए बेटा, a dockyard, dockyard बोलते हैं वहाँ पर जहाँ पर जो समंदरी जहाज़ होते हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे जहाज़ होते हैं, शिप्स होते हैं वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक डॉकयार्ड भी फाउंड किया, ठीक है। कहाँ पर? लोथल। लोथल एक जगह का नाम है, ठीक है, जो आजकल कहाँ जो आजकल कहाँ पर है, वो गुजरात, गुजरात जो स्टेट है ना, वहाँ पर वो पाया जाता है, वो जगह वहाँ पर है लोथल। तो वहीं पर एक डॉकयार्ड भी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने फाउंड किया। So, suggests that ships might have carried goods to and from these old towns for trade purpose. ये जो डॉकयार्ड उन्होंने फाउंड किया आर्कियोलॉजिस्ट्स ने, इसी बिना पर उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने ये सोचा कि शायद उस ज़माने में लोग ये जो शिप्स भी, इससे वो क्या करते थे, इससे वो ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ करते थे। ये जो गुड्स होते हैं ना, सामान होते हैं ना, आइटम्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाया करते थे। इसलिए उन्होंने जब डॉकयार्ड वहाँ पर फाउंड किया, उन्होंने वो जगह फाउंड की जहाँ पर बहुत सारे शिप्स होते हैं, तब जाके इन्होंने कहा कि उस ज़माने के लोग भी ट्रेड, जो तजारत होते, एक बिजनेस करते थे। तो इसलिए तो यहाँ पर एक डॉकयार्ड है जहाँ से लोग क्या करते थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करते थे। सो लैंग्वेज एंड ट्रेड, देखिए बेटा, अब एक क्वेश्चन ये भी था कि उस ज़माने के लोग जो थे वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे, ठीक है ना। एंड ट्रेड, बिजनेस क्या करते थे, वो काम क्या करते थे वो, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे कि वहाँ पर चीज़ें जो थी, उन चीज़ों के बिना पर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये तो देखा कि वहाँ के जो लोग थे, उस ज़माने के जो लोग थे, वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, वो खाने में क्या खाते थे, उनके मकान कैसे होते थे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि वो बोलते कैसे थे। उन्हें ये मत पता था कि वो बोलते कैसे थे, क्योंकि उनमें से कोई इंसान तो हमारे सामने नहीं था जिसको हम बोलते हुए पाते, ठीक है ना, मत था। लेकिन ये उनके लिए थोड़ा सा एक टफ जॉब था, ये ढूंढना कि वहाँ के जो लोग थे, उस ज़माने के जो लोग थे, वो उनकी लैंग्वेज क्या थी। जैसे हमारी लैंग्वेज कश्मीरी है, या हिंदू की लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है ना। इसीलिए उन्हें ये पता नहीं था कि उस ज़माने के लोग, आज से 2000 पहले, 1000 पहले जो लोग थे इस दुनिया में, उनकी लैंग्वेज क्या थी, वो बोलते कैसे थे, किस ज़बान में वो बोलते थे, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट भी था और थोड़ा टफ जॉब भी था आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए। लेकिन वहाँ अगर आप अपनी पिक्चर्स देखोगे, जो टेक्स्ट बुक पर आपकी पिक्चर्स दी गई है ना, तो वहाँ पर इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब कुछ चीज़ें दी गई हैं वहाँ पर। उन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर क्या है, वहाँ पर लिखा होता है, वहाँ पर कुछ ऐसे लिखाई होती है। जब मैंने आपको कहा था कि सील्स, सील्स मैंने आपको कहा था ये कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो मड के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, या फिर किसी और चीज़ के बने होते हैं, लेकिन उनके ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं। कभी कभार वो डिज़ाइन किसी चीज़ का भी बना होता है, कभी कभी वो डिज़ाइन वहाँ पर कुछ लिखाई भी होती है, रिटन में भी होता है, मतलब वहाँ पर कुछ वर्ड्स भी लिखे होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने क्या किया, वो जो इंस्क्रिप्शन दिए गए ना आपकी टेक्स्ट बुक पर, आप वो पिक्चर्स अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वहीं पर फाउंड किया, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस उन्हें मिले, कुछ ऐसे पिक्चर्स उन्हें मिले, कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें मिली जिनके ऊपर सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं बल्कि रिटन में भी कुछ लिखा हुआ था। वही जो रिटन में कुछ लिखा हुआ था, तब जाके आर्कियोलॉजिस्ट्स ने फाउंड किया कि उस ज़माने के लोग जो थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे उस राइटिंग के बेस पे, ठीक है। देखिए बेटा, वी नो हु लुक्स आफ्टर द मॉडर्न विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज, बट हु लुक आफ्टर दीज फर्स्ट टाउन्स। देखिए बेटा, आज की बात अगर हम करेंगे, हम सबको पता है कि यहाँ पर
हमारा जो रूलर है, फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, बाकी सारे मिनिस्टर्स होते हैं, हमें पता है कि हमारी कंट्री को, हमारे स्टेट को रूल कौन करता है, ठीक है ना। यहाँ के जो मिनिस्टर है वो कौन है, सीएम कौन है, पीएम कौन है, ये सब हमें पता है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि आज से 2000 पहले वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर क्या इसी तरह जिस तरह से आज का जो ये गवर्नमेंट होती हैं, क्या उस ज़माने में भी ऐसे ही गवर्नमेंट हुआ करती थी, ये मत हमें पता है, हमें कुछ नहीं पता उस ज़माने के बारे में। Nobody can say Indus Valley had a written language but nobody can read it. See the inscriptions on the seal. देखिए बेटा, उस ज़माने के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें खोज निकाली। किस बिना पर, जो ओल्ड चीज़ें उन्हें वहाँ पर मिली, उस बिना पर उन्होंने कहा कि आज से 2000 पहले, 3000 पहले, 1000 पहले जो लोग थे वो कैसे हुआ करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, पहनावा कैसा था, ठीक है। और उन चीज़ों के बिना पर उन्होंने ये सब कहा, ठीक है। अब राइटिंग कैसी थी वहाँ पर, लैंग्वेज कैसी थी वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन थे ना, आपकी बुक पे भी आप अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पर कुछ लिखाई होती है, वहाँ पर कुछ राइटिंग होती है उन सील्स पर, ठीक है ना, उन चीज़ों पर कुछ लिखाई होती है, राइटिंग है। तो वहीं पर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कहा कि यह शायद वो ये लैंग्वेज यूज़ करते थे, बट वो लैंग्वेज क्या है वो आर्कियोलॉजिस्ट्स भी रीड नहीं कर पाए, क्योंकि वो टफ लैंग्वेज है। बिकॉज़ जो लैंग्वेज के बारे में हम जानते नहीं हैं, हमें वो पढ़ना भी नहीं आएगा, है ना, राइट है ना। तो इसीलिए उन्हें भी वो लैंग्वेज पढ़नी नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि ये जो लैंग्वेज है उस ज़माने के लोग यही लैंग्वेज यूज़ करते थे, बट ये क्या लैंग्वेज है उन्हें भी समझ नहीं आई, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें बस उन सील्स को देखना है, उन आइटम्स पे जो वो डिज़ाइन जो बने होते हैं, वहाँ पर जो राइटिंग होती है, हमें उन्हीं को देखना है कि उस ज़माने के लोग ये सारे लैंग्वेजेस यूज़ करते थे, ठीक है। सो ये था आपका लिविंग ऑन अ रिवर बैंक, ठीक है। सो ये टॉपिक आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया आपका। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये जो टेक्स्ट बुक अपनी देख लीजिए अच्छे से, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप वो अच्छे से देख लीजिए। वहाँ पर वो जो पिक्चर दी गई है ना आपकी, वो आप अच्छे से देख लीजिए कि पुराने ज़माने के लोग कौन कौन सी चीज़ें बनाते थे, पुराने ज़माने के लोग कैसे थे, वहाँ पर पूरा दिया गया है। वो जो इंस्क्रिप्शन दी गई है ना वहाँ पर सील्स, वो आप अच्छे से देख लीजिए। वहाँ पर जो लैंग्वेज थी, ठीक है ना, वहाँ पर रिटन में भी कुछ लिखा होता है, डिज़ाइन में भी कुछ है, ठीक है। वो आप अच्छे से गौर से देख लीजिए और थोड़ा सा उस पर नज़र मारिए एक बार, ठीक है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।